میری عربی مالکن نے مجھے اشارے سے اپنے کمرے میں بلایا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس گھر میں نوکری کرتے ہوئے یہ دوسرا ہفتہ تھا اور اب تک کئی بار ایسا ہوا تھا کہ مالکن اپنے کمرے سے نکلتی اور جب بھی میری نظر ان پر پڑتی تو وہ اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں بلانے لگتی۔ مالکن کا حلیہ دیکھ کر میں نظریں پھیر لیتا اور ایسے انجان بن جاتا جیسے میں نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ ان کے کمرے میں جانا تو بہت دور کی بات تھی، مجھے اتنی جوان اور حسین مالکن کے قریب جاتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ مالکن ایک جوان لڑکی تھی، اس کے باپ نے مجھے یہاں بنگلے پر نوکری کے لیے رکھا تھا اور میری نوکری کے تیسرے روز ہی امریکہ چلا گیا تھا، شاید کسی کاروبار کے سلسلے میں گیا تھا اور اپنی جوان بیٹی کو یہیں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ وہ عربی لڑکی کچھ عجیب سی تھی، سارا دن گھر سے باہر رہتی اور شام کو جب گھر آتی تو بہت ہی عجیب حلیے میں گھر میں گھوما پھرا کرتی۔ اس کا لباس دیکھ کر مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کبھی کسی عورت کو کھلے عام اتنے گندے لباس میں نہیں دیکھا تھا اور جہاں کہیں مالکن مجھ پر نظر پڑتی تو اشارے سے اپنے کمرے کی طرف بلانے لگتی۔ میں ہمیشہ دیکھ بھال کر یہاں وہاں جاتا، لیکن ایک دفعہ ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے سختی سے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہر بار میں اسی طرح کے اشاروں کو نظر انداز کرتا تھا جیسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو، لیکن اس دفعہ اس نے بالکل سامنے آ کر اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں چلنے کا کہا تھا۔ مالکن کی بات کو انکار کرنا اب ممکن نہیں رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے مالکن کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اس لیے میں آج تک کبھی اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ یا پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اور میں گھر میں تنہا تھے، ایسے میں مجھے جوان لڑکی کے کمرے میں جانا مناسب نہیں لگا تھا۔ میری تربیت ہی ایسی تھی کہ میں لڑکیوں کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ میری 3 بہنیں تھیں اور میں نے شروع سے ان کا احترام کیا تھا۔ مالکن کو بھی میں اپنی بہن کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن اس رات مالکن مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازے کو کنڈی لگا دی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخر اسے کمرہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی، جبھی تو تم نے یہاں نوکری کے لیے آئے ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور وہ مسکرائی اور بستر پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا حلیہ اور بھی عجیب ہو گیا۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، مجھے تمہاری یہی بات بہت پسند ہے کہ تم مجھے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے، ورنہ بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو میرے حسن کے عاشق ہیں، لیکن میں ان سے متاثر نہیں ہوتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی ساری مشکلوں سے باہر نکلو تاکہ تمہارے چہرے کی خوبصورتی مزید چمک جائے، اس لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ دراصل میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، تم میری ایک خواہش پوری کر دو، بدلے میں تمہیں ایک رات کے 50,000 ریال مل جائیں گے۔ بولو کیا سودا منظور ہے؟ مالکن کی بات سنتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ 50,000 ریال کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتنے پیسوں کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، مالکن 50,000 ریال؟ مالکن کہنے لگی، ہاں، میرے لیے یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، تم جانتے ہو ہم کتنے پیسے والے لوگ ہیں۔ مالکن کی بات تو واقعی سچ تھی، وہ بہت ہی پیسے والی تھی۔ اس کے پاس مجھے پاکستان سے یہاں کام کے لیے بلوایا گیا تھا، میرا سارا خرچہ بھی خود اٹھایا تھا، ٹکٹ تک مالک نے خود ہی بھیجا تھا، اور اب میں یہاں سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ میری تنخواہ 800 ریال تھی، اس لیے 50,000 ریال میرے لیے ایک بہت خطیر رقم تھی، جسے سوچ کر بھی میں خوش ہو گیا۔ میں نے مالکن سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیں آپ کو کیا کام ہے، میں خود آپ کا کام کر دوں گا۔ مالکن نے کھڑے ہو کر میری نظروں میں نظریں ڈالیں، میرا جسم کঁپنے لگا، میرے لیے سانس لینا بھی دوبار ہو گیا تھا کیونکہ مالکن میرے بہت قریب آ گئی تھی۔ مالکن کہنے لگی، مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے بلکہ اپنی ایک خواہش پوری کروانی ہے۔ اگر تم نے میری خواہش پوری کر دی تو میں صبح ہوتے ہی یہ رقم تمہیں دے دوں گی، بس ایک رات ہی کی بات ہے، سوچو، پھر تمہیں یہاں نوکری بھی نہیں کرنی پڑے گی، تم اتنی بڑی رقم لے کر واپس اپنے وطن چلے جاؤ گے۔ میں نے گھبرا کر مالکن سے کہا، کیا خواہش ہے؟ اور پھر مالکن نے جو خواہش میرے سامنے بیان کی، میں سر سے پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میں نے فوراً انکار کیا اور کہا، یہ کسی طرح ممکن نہیں، میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا۔ مالکن کہنے لگی، سوچ لو، بس 12 گھنٹے ہی کی بات ہے، ابھی رات کے 8 بج رہے ہیں، صبح 8 بجے تک تمہیں میری خواہش ہی تو پوری کرنی ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ تم نوجوان مرد ہٹے کٹے ہو اور خوبصورت ہو، تمہارے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ میں نے مالکن سے کہا، کیا بات صحیح اور غلط کی ہے؟ آپ جانتی ہیں وہ سراسر غلط ہے اور گناہ ہے۔ مالکن نے میرے دونوں کندھوں کو مضبوطی سے ہاتھوں سے جکڑا اور کہنے لگی، 50,000 ریال، اور وہ بھی صرف ایک رات میں؟ میرا خیال ہے کہ تم اگر صرف اسی بات کے بارے میں سوچو
तो बाकी 12 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होंगे और मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तुम्हारे और मेरे सिवा बंगले में कोई नहीं है, इसलिए ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मालकिन की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। मालकिन की ख्वाहिश इंतहाई खतरनाक थी कि अगर मालिक को पता चल जाता तो शायद वो मुझे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देते। मालकिन को अपने अंजाम की फिक्र नहीं थी, लेकिन मुझे अपने अंजाम सोचना था, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे मेरी माँ, मेरी 3 बहनें और बीमार बाप पाकिस्तान में मौजूद थे, जो मेरी कमाई के आसरे में थे। मैं यहाँ से पैसे भेजता तो ही घर का गुजारा होता। मुझे डर लग रहा था कि इस शॉर्टकट के चक्कर में कहीं किसी बड़े बवाल में न फंस जाऊँ। मैं बहुत परेशान हो रहा था। मालकिन ने मुझे सोचते हुए देखा तो कहने लगी, चलो ठीक है, मैं तुम्हें सोचने के लिए 2 दिन का वक्त देती हूँ। बाबा के आने में 4-5 दिन बाकी हैं, तो तुम 2 दिन अच्छी तरह से सोच समझ लो और फिर मुझे जवाब देना। दिन के वक्त मेरे दूसरे नौकर भी होते हैं, उनके सामने मैं कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बाबा के पुराने और वफादार मुलाजिम हैं। हर बात बाबा के आते ही बता देंगे। वो लोग शाम में चले जाते हैं, यहाँ रात को सिर्फ तुम ही रुकते हो, इसलिए मैं अपनी ख्वाहिश तुम्हारे जरिए से पूरी करना चाहती हूँ। ये कहकर मालकिन ने बड़ी आहिस्ती से अपनी उंगली से मेरे होंठों को छुआ। मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं घबराकर पीछे हटा। मेरे चेहरे की घबराहट देखकर मालकिन की हंसी छूट गई और मैं तेजी से उनके कमरे से बाहर निकल आया। बंगले के पीछे से सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचकर बिस्तर पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। इतने बड़े बंगले में सिर्फ मैं और मालकिन थे। मालकिन की नीयत का मुझे अच्छी तरह से पता चल गया था। मैं सोच रहा था कि मालकिन अपने बाप की गैर मौजूदगी में ऐसा काम कैसे कर सकती है। आखिर वो ये सब क्यों करना चाहती है? वो तो अपने बाप की इकलौती बेटी है। अगर उसके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश है तो वो जायज़ तरीके से भी पूरी कर सकती है। ये वो सवाल थे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। तो सारी रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन मुझे नींद न आई। मालकिन का सराबा मेरी आंखों के आगे घूमता रहा। मैं जवान मरता। मेरे लिए मालकिन को ऐसी हालत में देखकर अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। मैं यही सोचता रहा कि 50,000 रियाल के बदले में अगर मैं मालकिन की बात मान लूँ तो मेरे हालात बदल सकते हैं। मुझे यहाँ सालों मेहनत करके भी इतना पैसा हासिल नहीं हो सकता जितना कि एक रात के बदले में मालकिन मुझे देने को तैयार थी। अगरचे काम ठीक नहीं था, लेकिन उस काम के ज़रिए मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता था जो मेरा ख्वाब था। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद लग गई। सुबह ही उठा तो बंगले में पहुंच गया। मेरा काम बंगले की साफ़ सफाई करना और बर्तन धोना था। यहाँ के सारे पुराने मुलाजिम को अलहदा से रिहाइश मिली हुई थी। एक मैं ही था जिसे मालिक जाया करते क्वार्टर में जगह दी हुई थी। पाकिस्तान में मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, जबकि मैं पढ़ा लिखा था। मैंने अरबी ज़बान में मास्टर्स भी किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने सऊदीया में नौकरी के लिए दरख्वास्त डाली थी। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ मुझे ऐसी नौकरी मिलेगी। जब मुझे उस नौकरी की ऑफ़र हुई तब मैं सोच में पड़ गया और फिर हालात से मजबूर होकर मैं सऊदीया चला आया। और अब ये मौका जो मालकिन की तरफ से मुझे मिल रहा था, ये मेरे लिए बहुत अहम और कीमती था। लेकिन मेरा किरदार आड़े आ रहा था, जो मुझे इस गलत काम करने से इजाज़त नहीं दे रहा था। मेरी तरबियत इस तरह से नहीं हुई थी। मैं सारा दिन मुलाजमिन के साथ काम करता रहा। मालकिन तो न जाने कहाँ गई हुई थी। काम करते करते मैंने पुराने मुलाजमिन से बातचीत करना शुरू कर दी। इन कुछ दिनों में मेरी खाना पकाने वाले हिंदुस्तानी खानसामा रमेश से काफ़ी दोस्ती हो गई थी। वो यहाँ काफ़ी अरसे से खाना पकाने का काम कर रहा था। मैंने बस यूं ही पूछ लिया कि मालकिन सारा दिन कहाँ रहती हैं और मालिक उन्हें अकेला छोड़कर कैसे चले गए। मेरी बात सुनकर खानसामा कहने लगा, ये तो मामूल की बात है। मालिक कहीं भी जाते हैं तो मालकिन को साथ नहीं ले जाते। वो अपने कारोबारी काम से जाते हैं और मालकिन की तबीयत बड़ी ही अय्याश है, कभी किसी लड़के के साथ तो कभी किसी लड़के के साथ। उनका काम यही है। मालिक तो खुद अपनी बेटी के इस मिजाज से बहुत तंग आ चुके हैं। वो अपनी बेटी को सुधारने की न जाने कितनी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मालकिन की अय्याश फितरत में कोई तब्दीली नहीं आती। दरअसल मालकिन को अपनी माँ का साया नहीं मिला, शायद इसीलिए उनकी तरबियत ठीक नहीं हुई और वो बेरहमी का शिकार हो चुकी है। मालिक शायद जल्दी इनकी शादी करवा दें। यह कहकर खानसामा अपने काम में मसरूफ़ हो गया और मैं सोच में पड़ गया कि मालिक भी मालकिन को यह फितनत से वाकिफ़ हैं और जानते हैं कि इनकी बेटी किस रास्ते पर चल रही है। शायद इसलिए मालकिन को अपने बाप का खौफ भी नहीं है। मुझे सोच में डूबा देखकर खानसामा कहने लगा, मालकिन से दूरी में रहना। हम में से कोई भी मालकिन से ज़्यादा बात नहीं करता।
अगर तुम भी नौकरी बरकरार रखना चाहते हो तो मालिक के वफादार रहो और मालकिन की किसी बात पर कान न धरना। कभी कभी तो वो नशा करके भी घर आती हैं, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज कर दिया करो। तुमसे पहले भी यहाँ एक नौकर आया था और वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन पकड़ी गई तो उस नौकर को मालिक ने काम से निकाल दिया और मालकिन पर सख्ती शुरू कर दी। अब पिछले कुछ दिनों से फिर इनकी हरकतें मशकूक नज़र आ रही हैं। यकीनन मालिक घर पर नहीं है और फिर वो किसी मौका की तलाश में होगी और दोबारा अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूर्ण करना चाहेंगी। मैंने झिझकते हुए खानसामा से पूछा कि मालिक मालकिन की शादी क्यों नहीं कर देते, इस तरह उनका मसला हल हो जाएगा। मेरी बात सुनकर खानसामा ज़ोर से हंसा और कहने लगा, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा, अभी तुम यहाँ नए हो, तुम्हें मालकिन के बारे में मालूम ही क्या है। फिर वह मुझे कहने लगा, जाओ जाकर जल्दी से अपना काम ख़त्म करो, देर हो रही है, मुझे भी खाना बनाने दो। और हम दोनों अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। रात के 8 बजते ही सारे नौकर अपने घरों को चले गए थे। वो अब सुबह 8 बजे वापस आने वाले थे और मालकिन यही 12 घंटे तो मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। इन सब के जाते ही मालकिन कमरे से बाहर निकली और मुझे देखकर कहने लगी, फिर तुमने क्या सोचा? मैंने इनकार में सर हिलाया तो कहने लगी, बस एक दिन और है, कल रात तक मुझे सोचकर जवाब देना, क्योंकि इसके बाद बाबा वापस आ जाएंगे तो तुम बड़े ही बेवकूफ़ हो, 50,000 रियाल कमाने का सुनहरी मौका गंवा रहे हो। मैंने तुमसे इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं कहा है, छोटी सी ख्वाहिश तो है मेरी, ये कहकर वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चले गई। आज भी उन्होंने बहुत बुरा लिबास पहन रखा था। दिल में सोचने लगा, न जाने ये कैसी लड़की है, शायद माँ की कमी ने इसे ऐसा बना दिया है। वाकई माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाप तो कमाने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन तरबियत जिम्मेदारी माँ पर ही होती है। मैं थका हारा अपने सर्वेंट क्वार्टर में आकर बैठा तो मुझे अम्मा का ख्याल आने लगा। बेख्तियार ही मुझे याद आ रहा था कि मेरी माँ ने तरबियत कितनी अच्छी की है। मेरी माँ ने मेरी बहनों को भी बहुत इज़्ज़तदार बनाया था। वो कभी नज़र उठाकर भी गैर मर्दों की तरफ नहीं देखती थी। अम्मा की ज़्यादा याद सताती तो मैं फ़ोन उठाकर अम्मा को फ़ोन लगा देता। बहुत कम ही मैं अपने घर में फ़ोन करता था, क्योंकि घर वालों से बात करने के बाद मेरे लिए यहाँ रुकना मुश्किल हो जाता था। मुझे घर की बहुत याद सताती थी। घर का फ़ोन मेरी बहन ने उठाया, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया। मैंने पूछा, क्या हुआ है? तो वो एकदम ही ज़ारो-कतार रोने लगी और जो खबर उसने मुझे सुनाई वह सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ था और वह अस्पताल में एडमिट थी। घर वालों ने मुझसे ये बात छुपा रखी थी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बहन अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और उसने मुझे बात बता दी। इतने में मेरे बीमार अब्बा ने बहन के हाथ से रसीफा लिया और मुझसे कहने लगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरी माँ की देखभाल अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन मेरे जहन में तो बस अम्मा का सरापा घूम रहा था। मैंने अब्बा से कहा कि पैसों का क्या, अपना अस्पताल का खर्चा और दवाइयों वगैरह के लिए पैसे कहाँ से आए? मेरी बात सुनकर अब्बा खामोश हो गए। मैं जान गया कि मेरे पीछे घर के हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। मैंने अब्बा से कहा, परेशान ना हो, मैं कल ही आपको पैसे भिजवा देता हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बा कहने लगे, बेटा मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जब तक तेरी तनख्वाह नहीं मिलती घर का गुजारा बहुत मुश्किल है। कल से हम लोग फाकों पर हैं। तेरी माँ सरकारी अस्पताल में एडमिट है, वहाँ डॉक्टर सही तरीके से उसकी देखभाल भी नहीं कर रहे। किसी ने मशवरा दिया है कि प्राइवेट अस्पताल में तेरी माँ का चेकअप करवा लूँ, लेकिन यहाँ तो रोटी के लिए भी पैसे नहीं। अब्बा एकदम से रो पड़े थे, शायद उनके ज़ब्त की सारी हदें टूट गई थी। और फिर मैंने अब्बा से वादा किया कि मैं कल ही आपको एक बहुत बड़ी रकम भेजूँगा, जिससे आपके सारे मसले भी हल हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में मैं भी लौट आऊँगा। ये सुनकर अब्बा हैरत से पूछने लगे, तेरे पास इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने अब्बा को बताया, मेरी मालकिन बहुत रहमदिल है और बहुत ख्याल रखती है, उसने मुझे ये पैसे दिए हैं। ये सुनकर अब्बा खुश हो गए और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे ये फ़ैसला करने में एक लम्हा भी नहीं लगा था कि अब मैं मालकिन की बात मान लूँगा, क्योंकि मेरी बात माँ की ज़िंदगी और मेरी बहनों के मुस्तकबिल की थी। इसलिए मैं अपना आप कुर्बान करने को तैयार हो गया था। अगला सारा दिन मैंने बड़ी ही बेचैनी में गुजारा और शाम के वक्त जब ये सब लोग चले गए तो मैंने मालकिन को कहा कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर उनका चेहरा खुशी से खिल उठा और वो कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम बहुत समझदार हो। मैंने मालकिन से कहा, लेकिन मुझे पैसे पहले चाहिए, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और मुझे ये पैसे अपने वतन भिजवाने हैं।
मालकिन कहने लगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फ़ौरन ही पैसे भिजवाने का इंतज़ाम कर देती हूँ, तो मुझे एड्रेस दे दो। मैंने मालकिन को अपना पता दिया। वो काफ़ी देर तक फ़ोन पर किसी से बात करती रही और कहने लगी, बस आधे घंटे में ही तुम्हारे घर वालों को पैसे मिल जाएंगे। मैंने मालकिन से कहा कि मैं पहले तसल्ली करूँगा। वो कहने लगी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि सारे मुलाजिम जा चुके हैं और सुबह 8 बजे ही वापस आएंगे। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। और फिर आधे घंटे बाद जब मैंने अपने घर फ़ोन किया तो मेरी बहन की आवाज़ में खुशी थी। वो कह रही थी कि भाई, आपके भेजे हुए पैसे मिल गए हैं। कोई पठान आदमी आया था, उसने बताया कि आपने पैसे भिजवाए हैं। अब हम अम्मा का इलाज बहुत बड़े अस्पताल में करवाएंगे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उससे कहा कि बस कुछ ही अरसे में मैं भी वापस आ जाऊंगा। मालकिन मेरे सामने खड़ी थी, कहने लगी, चलो तुम्हारा मसला हल हो गया, अब मेरा मसला ख़त्म करो। ये कहते ही मालकिन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी और मेरा रुआं रुआं कांपने लगा था। मजबूरी के आलम में जो फैसला मैंने किया था, मेरा दिल इस पर बिल्कुल राज़ी नहीं था। खैर, मैं मालकिन के साथ उसके कमरे में चल पड़ा जहाँ वो मुझे ले जाना चाहती थी। और फिर वो सारी रात मैंने और मालकिन ने बहुत मसरूफ़ गुजारी। पूरे 12 घंटे लगातार हम दोनों ने मिलकर मालिक के कमरे का एक एक कोना छान मारा। मालकिन को किसी खास चीज़ की तलाश थी जो मालिक के कमरे में थी और वह मेरे ज़रिए से उस चीज़ को ढूंढना चाहती थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था लेकिन मालकिन का मकसद कामयाब नहीं हो रहा था। और फिर सुबह के वक्त मुझे वो चीज़ मिल गई जिसकी तलाश मालकिन को थी, लेकिन न जाने क्यों मैंने वो मालकिन को देने की बजाय छुपा ली थी, क्योंकि मेरे दिल में खौफ खुदा आ गया था। सुबह की अज़ानें हो रही थी और मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मालकिन ने मुझे मायूसी से देखा और कहने लगी, मुझे लगा कि तुम मेरे बहुत काम के होंगे। तुम इस घर के एक एक कोने की सफाई करते हो तो तुम्हें ज़रूर इस चीज़ के बारे में इल्म होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं तुम्हारे पीछे 50,000 रियाल बर्बाद कर रही हूँ। तुम तो मेरे किसी काम के नहीं आए। मैंने मालकिन के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की हो और फिर भी वो चीज़ न मिली हो। ऐसे ही सुबह के 8 बज गए और जैसे ही नौकर आना शुरू हो गए, मालकिन मायूसी से वापस अपने कमरे में चली गई और मैं सफाई के कामों में मसरूफ़ हो गया था। दोपहर के वक्त मालिक घर लौटे तो मालकिन घर पर नहीं थी। वो दोबारा से कहीं बाहर चली गई थी। मालिक अपने कमरे में गए। मैं मालिक के सामने गया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मालिक मुझे देखने लगे तो मैंने शुरू से आखिर तक मालिक को सारा किस्सा सुना दिया। ये सुनकर मालिक चौंक उठे और कहने लगे, तो क्या वो चीज़ मिल गई थी? मैंने सर हिलाया और कहा, जी मालिक। मैंने वो चाबी निकालकर मालिक के सामने रख दी। मालिक ने एक सर्द आह भरी और कहने लगे, मेरी इकलौती बेटी न जाने किन रास्तों की मुसाफिर बन चुकी है। मैंने अपनी तरफ से इसकी तरबियत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद कारोबार की वजह से मैं इसे ज़्यादा तवज्जो न दे सका जो इसकी माँ दे सकती थी। यही वजह है कि वो अपने बुरे दोस्तों का शिकार हो गई है। अब वो हर तरह का नशा भी करती है और गलत कामों में भी पड़ चुकी है, इसलिए उसे हर रोज़ हज़ारों रियाल चाहिए होते हैं और ये सारा पैसा अपने अय्याश दोस्तों पर खर्च करती है। जब भी मैंने हर तरह की पाबंदी लगा दी, यहाँ तक कि इसका खर्चा भी बंद कर दिया, तो इसने ये नया तरीका तलाश कर लिया है। वो मेरी तिजोरी की चाबी हासिल करके चोरी चुपके रोज़ाना मेरी तिजोरी से पैसे निकालने के ख्वाब देखने लगी है। पहले भी वो दूसरे नौकर के साथ मिलकर मेरे कमरे की इसी तरह तलाशी ले चुकी है। इस वक्त भी इसे चाबी नहीं मिली थी और वो दोनों पकड़े गए थे, क्योंकि घर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं और ये बात मेरी बेटी को पता नहीं है। अगर तुम खुद मेरे सामने खड़े होकर अपने गुनाह का इकरार न करते तो कुछ ही देर बाद मैं सारी CCTV चेक करता और मुझे पता चल जाता कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों ने क्या क्या किया है। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने इसके गलत काम में उसका साथ नहीं दिया। मैंने मालिक को 50,000 रियाल वाली बात भी बता दी और ये भी बताया कि मेरे हालात बहुत ख़राब थे, इसलिए मैंने मजबूर होकर ये सब किया। मालिक ने 10,000 रियाल मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगे कि ये भी अपने घर भेज दो। जो पैसे मेरी बेटी ने तुम्हें दिए वो भी मेरे पैसे हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी से खुद बात करूँगा, उसे समझाऊंगा कि अगर वो अपनी बुरी सोबतें छोड़ देगी तो मैं उसे दोबारा से पैसे देना शुरू कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो इतनी आसानी से राज़ी होगी। उसे नशे की आदत लग गई है। उसके दोस्त बहुत ख़राब हैं। मालिक की आंखों में आंसू आ गए। मैंने मालिक से कहा कि आप मालकिन की शादी क्यों नहीं कर देते। वो कहने लगे कि तुम्हारी मालकिन ने हर जगह खुद को बदनाम कर लिया है।
कोई उसके लिए रिश्ता लेने को राजी नहीं है। मैं इतना दौलतमंद हूँ कि किसी को भी खरीद सकता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती अपनी बेटी किसी के साथ नहीं डालना चाहता। मैं अपनी बेटी के लिए शोहर नहीं खरीद सकता। मालिक ने ना ही मुझे नौकरी से निकाला था और ना ही मुझे बुरा भला कहा था, बल्कि वो अपनी बेटी को समझाने के लिए उसके कमरे की तरफ चले गए थे। मैंने दिल से दुआ की थी कि मालिक की ये मुश्किल हल हो जाए। मालकिन अपने बाप का पैसा चोरी करना चाहती थी। उसका इरादा बहुत बुरा था और मैंने भी मजबूरी में उसका साथ दिया था। इस बात की मुझे बहुत शर्मिंदगी थी। मैं आज भी मालिक के बंगले पर काम करता हूँ और उस वक्त छुट्टियों पर पाकिस्तान आया हुआ हूँ। मालकिन की रविश अभी भी पहले जैसी है, लेकिन मालिक अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी मेरे मालिक की मुश्किल आसान हो जाए। मेरा ये कहानी बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है कि कभी कभी हम सोच कर बच्चों के सर पर सौतेली मार नहीं लाते कि इससे बच्चे परेशान होंगे, लेकिन माँ के ना होने की वजह से बच्चों की तरबियत में जो कमी रह जाएगी उसके बारे में हम नहीं सोचते। इसलिए खुदा न खास्ता कोई बच्ची या बच्चा अपनी माँ से महरूम हो जाए तो उसे दूसरी माँ ज़रूर दीजिए ताकि उसकी तरबियत में कभी कमी ना रहे। कहानी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।